Welcome student in this YouTube video. This video is based on the chapter agriculture and having the part 2 of this chapter. In the previous part I told you about the major crop and different type of farming practices in India, and in this video we will cover the remaining part of the chapter. In the previous video, I was telling you about the millets and I told you about the jawar. Then in this video, let's talk about bajra. Grows well on the sandy soils and shallow black soil. Bajra producing states are Rajasthan, Uttar Pradesh, Maharashtra, Gujarat, and Haryana. Ragi is a crop of dry regions and grow well on the red, black, sandy, loamy, and shallow black soils. Major ragi producing states are Karnataka, Tamil Nadu, and Himachal Pradesh. You can see the picture of bajra. और जो बच्चे रूरल एरिया से हैं उन्होंने शायद ये क्रॉप देखा भी होगा. Then our next major crop is maize. It is a crop which is used both as food and fodder. It is a creep crop which requires temperature between 21 degrees Celsius to 27 degrees Celsius and grows well in old alluvial soil. In some states like Bihar, maize is grown in Rabi seasons also. मीन्स की जो मेज़ है वो साल में 2 बार जो है बिहार में उगाई जाती है. यूज़ ऑफ मॉडर्न इनपुट्स सच एज HYV सीड, फर्टिलाइजर्स एंड इरीगेशन हैव कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ मेज़. मेजर मेज़ प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, जिसको हम हिंदी में मक्की कहते हैं. मक्की की फसल जो है सबसे ज़्यादा कर्नाटका में बोई जाती है. पिक्चर में बात देख सकते हैं मेज़ कल्टीवेशन. This is a map of wheat cultivation. You can easily notice that wheat cultivation basically done by the farmers of North India and some part of Madhya Pradesh, Punjab, Haryana, major areas and minor areas. Distribution of wheat. तो इस मैप की मदद से आप जो है इजीली उन प्लेसेस के बारे में जान सकते हैं. तो ये मैप भी आप अपनी नोटबुक में जरूर करिएगा. Pulses. India is the largest producer as well as the consumer of pulses in the world. These are the major source of protein in the vegetation diet. Major pulses that are grown in India are tur or arhar, moong, urad, masur, peas and gram. Can you distinguish which of these pulses are grown in खरीफ season and which are grown in the रबी season? ये आपके लिए एक्टिविटी है. आपने खरीफ और रबी सीज़न के अकॉर्डिंग जो है इन पल्सेस को क्या करना है, कैटेगराइज करना है. पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर. पहली बात तो ये कि उनको ज़्यादा मॉइस्चर की आवश्यकता नहीं होती है. एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशंस. बीइंग लेगुमिनियस क्रॉप, and these pulses are also known as leguminous crops. All these crops expect or her help in restoring soil fertility by fixing nitrogen from the air. Therefore, these are mostly grown in a rotation with other crops. Major pulses producing states in India are Madhya Pradesh, Rajasthan, Maharashtra, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका. दालें तो हम लोग सब खाते ही हैं, तो यू कैन ईजिली नेम सम ऑफ द पल्सेस जिनको हम लेगुमिनियस क्रॉप भी कहते हैं. लेगुमिनियस जो है क्रॉप होती हैं उनमें ख़ास बात ये होती है कि उससे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो नेचुरली एनहेंस होती है ड्यू टू दिस नाइट्रोजन फैक्टर. देन नेक्स्ट वन इज़ द फूड क्रॉप्स अदर दैन ग्रेन्स. शुगर केन की बात करते हैं. अब हम उन फूड क्रॉप्स की बात करते हैं जो ग्रेन्स नहीं है, जो अनाज नहीं है, जैसे शुगर केन है. इट इज़ अ ट्रॉपिकल एज वेल एज ए सब ट्रॉपिकल क्रॉप. इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद a टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस. मतलब जितना मेज़ के लिए टेम्परेचर चाहिए उतना ही टेम्परेचर इसके लिए जो है आइडियल है. एंड एन एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर. Irrigation is required in the regions of low rainfall. It can be grown on a variety of soils and needs manual labor from sowing to harvesting. India is the second largest producer of sugar cane only after Brazil. तो ब्राज़ील के बाद भारत जो है सबसे बड़ा उत्पादक है शुगर केन का. इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़, जगरी, खंडसरी एंड molasses. The major sugarcane producing states are Uttar Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा. शुगर केन कल्टीवेशन देख लीजिए आप, प्लांट देख लीजिए शुगर केन का, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये काफ़ी हाइट तक जाता है. Now let's talk about the oil seeds. In 2015, India was the second largest producer of groundnut in the world after China. In rapeseed production, India was third largest producer in the world.
तो देखिए इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट है पॉपुलेशन के हिसाब से, तो उसी हिसाब से भारत की जो प्रोडक्शन है वो भी है, इसीलिए इंडिया जो है सेकंड या फर्स्ट रैंक पर रहता है आफ्टर चाइना। तो ऑयल सीड का भी जो ये एरिया है इसमें इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट था ग्राउंड नट के मामले में आफ्टर Canada and China in 2015. Different oil seeds are grown covering approximately 12% of the total cropped area of the country. तो जितना भी एरिया जो है जहाँ पे फसल उगाई जाती है उसमें 12% एरिया जो है वो ऑयल सीड्स के लिए रखा जाता है, जिससे हमें तेल मिलता है, ऑयल मिलता है। मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सिसमम जिसे हम तिल कहते हैं, सोयाबीन, कैस्टर सीड, कॉटन सीड, linseed and sunflower. Most of these are edible and used as cooking mediums. घर में खाना बनाने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं और इसलिए उसको edible कहा जाता है. However, some of these are also used as raw material in the production of soap, cosmetics and ointments. Groundnut is a kharif crop and account for about half of the major oil seeds produced in the country. Gujarat was the largest producer of groundnut, followed by Rajasthan and Tamil Nadu in 2015-16. Linseed and mustard are the rabi crops. Sesame is a kharif crop in north and rabi crop in South India. Castor seed is grown both as rabi and a kharif crop. तो इसमें कुछ ऑयल सीड्स जो हैं वो रबी और खरीफ दोनों में ही जो है बोए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं सिसमम की, तिल की बात करते हैं, तो तिल जो है नॉर्थ में खरीफ है और साउथ में जो है ये रबी क्रॉप है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर कुछ सीजनल वेरिएशन भी देखने को मिलती हैं। देन नेक्स्ट वन इज़ टी। टी कल्टिवेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर. It is also an important beverage crop introduced in India initially by the Britishers. तो ये बेवरेज क्रॉप है, मतलब जिसको हम लिक्विड के रूप में यूज़ करते हैं, तरल के रूप में हम इसे लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक बेवरेज क्रॉप है. टुडेज मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशन आर ओन्ड बाय इंडियंस. द टी प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंडोव्ड with deep and fertile well drained soil. सो डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल जो है इसके लिए चाहिए होती है, रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर. तो टी जो है वहाँ पे अच्छी खासी ग्रो करती है. अब ये फार्मर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है अपनी क्रॉप के साथ में है, नीचे सनफ्लावर की कल्टीवेशन की गई है. फिगर 4.9 आप देख सकते हैं. ग्राउंड नट, सनफ्लावर एंड मस्टर्ड आर रेडी टू बी हार्वेस्टेड इन द फील्ड. तो ये तीनों जो फोटोग्राफ है, एक में ग्राउंड नट है, एक में सनफ्लावर है और एक में मस्टर्ड जो है वो कटने के लिए, कटाई के लिए तैयार है. अब टी बात करते हैं. टी बुशेस होती हैं, रिक्वायर्स वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर. तो इसको फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए होता है. फ्रीक्वेंट शावर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर एंश्योर continuous growth of tender leaves. Tea is a labor intensive industry. It requires abundant, cheap and skilled laborer. Tea is processed within the tea garden to restore its freshness. Major tea producing states are Assam, hills of Darjeeling and Jalpaiguri district, West Bengal, Tamil Nadu and Kerala. Apart from these, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Meghalaya, Andhra Pradesh and Tripura आर ऑल्सो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन द कंट्री. तो मतलब टी जो है प्लांटेशन भारत के अधिकतर राज्यों में की जाती है, हिली एरियाज में स्पेशली. इन 2015 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना. तो फिर से जो है इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था चाइना के बाद. ये टी कल्टीवेशन का आप पिक्चर देख सकते हैं. पहाड़ों पर की जाती है जहाँ पे वेल ड्रेन्ड सॉइल हो, डीप एंड फर्टाइल सॉइल हो. बहुत से कंडीशंस हैं इसके लिए होती हैं कल्टीवेशन के लिए. Then in this picture you can see tea leaves harvesting. पत्ते जो है उसके तोड़े जाते हैं, प्लग किए जाते हैं और इस very labor intensive plantation crop. Then coffee is again a average crop and Indian coffee known as the world as the good quality coffee. The Arabica variety initially brought from Yemen is produced in the country. तो भारत में जो वैरायटी है अरेबिका वो यहाँ प्रोड्यूस की जाती है, जो कि यमन से लेके आई गई थी. दिस वैरायटी इज़ इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड. इनिशियली इट्स कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा बुडान hills and even today its cultivation is confined to the Nilgiri in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. तो कॉफ़ी की कल्टीवेशन जो है बाबा बुडान हिल्स में शुरू की गई थी और उसी के आसपास ये सीमित है आज भी, जिसमें कर्नाटका है, केरला है और तमिलनाडु के एरियाज़ इसमें आते हैं. After that, let's talk about the horticulture crops.
In 2015, India was the second largest producer of fruits and vegetables in the world after China. इंडिया इज़ ए प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। तो भारत में अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द सीज़न ऑफ मैंगोज़, एंड मैंगोज़ महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में इसकी उपज होती है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। ऑरेंजेस ऑफ नागपुर, आपको पता ही होगा नागपुर के जो ऑरेंजेस बहुत फेमस हैं। एंड चिरापुंजी मेघालय में है। बनानाज ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। लीची एंड गुआवा ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। Pineapples of Meghalaya, grapes of Andhra Pradesh, Telangana and Maharashtra, apple, pears, apricots and walnuts of Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh are in great demand all over the world। तो आप इसमें कुछ पिक्चर्स भी देख सकते हैं जिसमें एप्पल का आप प्लांट भी देख पाएंगे। और इस प्रकार से जो है भारत हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में भी जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। और हमें ये पता कैसे चलता है कि कहाँ पर जो है भारत जो है सेकंड लार्जेस्ट कैसे है? तो ये सोर्सेज होते हैं जहाँ पे डेटाज जो हैं, स्टैटिस्टिक्स जो हैं उसकी मदद से इकट्ठे किए जाते हैं। पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स 2017, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की जो ये डेटाज हैं उसके ज़रिए ये कहा जा रहा है इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, काउलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टमाटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। तो यहाँ पे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो हैं उगाए जाते हैं और भारत जो है उसमें उसका एक अच्छा खासा जो है वो रैंक है। अब हम बात करते हैं नॉन फूड क्रॉप्स की, मतलब वो क्रॉप जो कि फूड नहीं है, जो कि खाने में हम यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि रबर है। सो लेट्स टॉक अबाउट द रबर प्लांटेशन। इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप but under special condition it is also grown in tropical and subtropical areas. It requires moist and humid climate with rainfall of more than 200 centimeter and temperature above 25 degrees Celsius। तो ये जो है एक तरह से इक्वेटोरियल क्रॉप है जो कि इक्वेटर के आसपास के इलाकों में उगती है, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल एरियाज़ भी हैं जहाँ पे ये ग्रो करती है। इसके लिए हैवी रेनफॉल चाहिए 200 सेंटीमीटर के आसपास, और टेम्परेचर जो है वो भी काफ़ी ह्यूमिड टाइप का चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस। रबर इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। इट इज़ मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय। तो देखिए गारो हिल्स ऑफ मेघालय में क्यों ग्रो करती है? क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत होती है। और ये तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान, केरला जो हैं ये सब जो है इक्वेटर के काफ़ी नज़दीक है, तो इसीलिए जो है वहाँ पर ये क्रॉप जो है ग्रो करती है और अच्छी खासी बारिश भी होती है वहाँ पर। चलिए दिस इज़ वन एक्टिविटी, और एक्टिविटी जो है आपने अपनी नोटबुक में ये करनी है, लिस्ट ऑफ द आइटम विच आर मेड ऑफ रबर एंड आर यूज्ड बाय अस। तो आप जो भी आइटम्स देखते हैं जो कि बनी हुई है रबर के द्वारा, उसकी एक लिस्ट बनाएंगे, और जब भी ऑनलाइन क्लास होगी तो मैं इस एक्टिविटी को आपको जो है करने को बोलूँगा। देन फाइबर क्रॉप्स। तो फाइबर क्रॉप्स क्या होती हैं? जैसे कॉटन है, जूट है, हेम्प है, नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। तो 4 प्रकार की जो फाइबर क्रॉप्स हैं भारत में उगाई जाती हैं या प्रोड्यूस की जाती है। द फर्स्ट 3 आर derived from the crop grown in the soil. The latter is obtained from the cocoons of the silkworm fed on green leaves, especially mulberry। तो इसमें कॉटन, जूट और हेम्प जो है वो उगाई जाती हैं, कल्टीवेशन की जाती है, लेकिन सिल्क जो है वो आप जानते ही होंगे कि एक सिल्क का जो रेशम का कीड़ा होता है, जो उसी से कोकून जिसको कहते हैं, उससे इसे हासिल किया जाता है। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, जिसे हम सेरीकल्चर भी कहते हैं, उसके द्वारा जो है सिल्क फाइबर ऑब्टेन किया जाता है। देन कॉटन की हम बात करते हैं। सबसे पहले कॉटन इज़ बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट इंडिया। इंडिया जो है कॉटन प्लांट का ओरिजिनल घर है। दुनिया में अगर कहीं भी कॉटन आप देखिए, कॉटन कपड़े जो है बहुत ही फेमस हैं, या मतलब बहुत ही ज़रूरी एक ये क्रॉप है, तो इसकी शुरुआत भारत में हुई थी। कॉटन इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। In 2015, India was second largest producer of cotton after China. Cotton grows well in drier parts of the black cotton soils of the Deccan Plateau। देखिए ये डेक्कन प्लेट्यू की जो ब्लैक सॉइल पार्ट है वहाँ पर अच्छी खासी कॉटन जो ग्रो करती है, बिकॉज कॉटन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप। तो आप इस क्वेश्चन को जो याद करिएगा, एग्जाम्स में आ सकता है ये क्वेश्चन। फिगर 4.14 देख सकते हैं। कॉटन कल्टीवेशन, कॉटन की जो नॉट्स होती हैं उनको कलेक्ट किया जाता है, उसमें से कॉटन को अलग किया जाता है। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। अब डेक्कन प्लेट्यू है तो वहाँ पे हाई टेम्परेचर रहता है, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन,
एंड बहुत कम इसको बारिश चाहिए, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज इसको चाहिए, एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। इससे खरीफ क्रॉप, अगर सीज़न की बात करें तो खरीफ क्रॉप है, मानसून आने पे बोई जाती है, एंड इट रिक्वायर्स 6 to 8 मंथ टू मेच्योर। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। ये 3 सबसे बड़े राज्य हैं जहाँ पे ब्लैक सोइल भी ज़्यादा है और यहाँ पे पैदावार भी इसकी ज़्यादा होती है। इसके अलावा कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी कॉटन कल्टीवेशन की जाती है। दैन द सेकेंड फाइबर क्रॉप इज़ जूट। इट इज़ नोन एज द गोल्डन फाइबर। जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है बिकॉज इसका कलर जो है वो उसी तरह का होता है। जूट ग्रोज वेल ऑन द वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इन फ्लड प्लेन। तो ये फ्लड प्लेन एरियाज़ में ही ग्रो करती है जहाँ पे अच्छी खासी जो है वो सॉइल जो है फर्टाइल भी हो और वेल ड्रेन्ड भी हो, वेयर सॉइल्स आर रिन्यूड। और इसके बाद जो है जूट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद आपको एक एक्सरसाइज है, कुछ क्वेश्चंस हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द रीडिंग और completed chapter you finish the exercise which I am giving on this page. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स हैं, दैन वन क्वेश्चन है एवरेज क्रॉप्स के बारे में लिखना है। तो आप इजीली जो है इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को नोटबुक में करिए, और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ते रहिए। उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद की कंसेप्ट जो है चैप्टर की जरूर क्लियर करिएगा। उसके बाद आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।